We invite to join us on stage Mr. Manoj Joshi, inspirational actor and Padma Shri awardee, who's going to be joining us for an inspirational address on the topic Breaking the Stereotype to Emerge a Winner. Ladies and gentlemen, before we begin this inspiring address by Mr. Joshi, we have a brief but significant interlude for something that is very important to all of us here. But before we come to that, let's first watch this quick AV. Over the years, humanity has made extraordinary progress, from doubling average life expectancy to enabling space travel. Mankind has relentlessly pressed on the growth pedal. But all that has come at a big, big cost. In our quest for progress, we have forgotten the most important thing: our life on this beautiful planet called Earth. As we continue to exploit resources, pollute nature, and leave carbon footprint, the threat of human extinction is coming closer. Nature is coming hard at us like never before, with climate change, natural disasters, and more. In this hour of environmental crisis, can we take a pledge to collectively work toward reversing the disaster? Every small step counts. As stakeholders of the OOH industry, we can all make a difference, not only in terms of adopting eco-friendly practices, but also utilizing our media to propagate responsible actions. We have everything to gain. Let's make it happen. The world will remember us forever. Well, ladies and gentlemen, something to definitely think about, right? It's time for us now to walk the talk of that message we just heard. I request Mr. Joshi to kindly take us through this specially drafted green pledge for OOH, and may I request everyone in the audience to please stand as you and I together take this pledge. We're going to repeat after Mr. Manoj Joshi. Namaskar. On this day, please repeat with me. On this day, the 26th of July 2024, we as responsible business leaders take this collective pledge that we will strive to adopt practices that are mindful of our environment, that sustain our beautiful planet and contribute to a safer, greener and cleaner future. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you so much, sir. Thank you, ladies and gentlemen, for joining in that pledge. Kindly take your seat. And now to join us on stage for a very interesting conversation with Mr. Manoj Joshi. We are truly honored to welcome on the stage Dr. Dwarika Prasad Uniyal, Pro Vice Chancellor at RV University, Bengaluru. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Dr. Dwarika Prasad Uniyal. Okay. Good morning, Bengaluru. Yellaragu Namaskara, everybody. Today it is a very, very amazing day for all of us.
and amongst us, as you all know, is the renowned film actor, stage actor, philanthropist, the person who has been working relentlessly for the benefit of the Cine Artists Association, is the president of Cintra. Ladies and gentlemen, please give a warm applause and welcome Mr. Manoj Joshi. आज सुबह बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। मनोज भाई और हम मिले, हमने गुजराती में बात करी, फिर हमने एक फिल्म की बात करी, और जिस किरदार को ये निभा रहे हैं वो एक स्टेट और प्रांत से आते हैं, उत्तराखंड। तो मैंने कहा मैं उत्तराखंड से हूं, तो कहते हैं अरे अभी तो गुजराती में बात कर रहे थे। फिर दो और बातें निकली। हम दोनों स्वभाव से बहुत ज़्यादा मीठे लोग हैं, क्योंकि इनका शुगर भी लो हो गया था, क्योंकि ये थोड़े से डायबिटिक है और मैं भी काफ़ी डायबिटिक हूँ। तो इनको अभी हमने खूब सारा मीठा खिलाया है ताकि इनका शुगर ऊपर आ जाए, और समथिंग विच वी एक्चुअली ऑलवेज एम फॉर, बिकॉज हमें ये खाने को मिलता नहीं है। तो अभी मौका मिला, शुगर नीचे आया, दबा के शुगर खाइए। सो दिस व्हाट वी आर गोना डू टुडे इज talk a little bit more about him, but before we do that, is Praveen there? Praveen is on cue. We're gonna play, ये बड़ी मुश्किल से, इनकी इतनी सारा फिल्मोग्राफी, इतना ज़्यादा काम है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, and we'll talk both in English and Hindi here for everybody. एक स्निपेट मनोज भाई के वर्सटैलिटी को दिखाते हुए हम लोग दिखाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने खोजा है, हल्का सा एक स्निपेट मिला है मुझे 18 सेकेंड का। प्रवीण, प्ले दैट। क्या? लेकिन वो नैनीताल में हमने जो आपके लिए फार्म हाउस बनवाया, वो कैसे बनवाया? खैर, जब बाढ़ को रोकता हूँ। अब जाइए, भोजन गृह के बाहर लक्ष्मी देवी आपका इंतजार कर रही है, जाइए। इन्हें चोर को 50,000 रुपए के साथ पकड़ा है। अभी मेरे को जरा डायबिटीज का प्रॉब्लम तो और आप सबने इनको देखा होगा टेलीविजन पे। टेलीविजन से इनकी जो जर्नी शुरू हुई, उसके बाद फिल्में आई, लेकिन उससे पहले की ज़िंदगी से सबसे पहले मैं मनोज भाई से पूछूंगा और शुरू करूंगा इनकी स्टेज की ज़िंदगी के लिए। मनोज भाई, क्योंकि आपने काफ़ी साल रंगमंच को दिए, और अभी भी मनोज भाई उनमें से काफ़ी रेयर एक्टर्स में से हैं जिन्होंने सफलता पाने के बाद भी रंगमंच को छोड़ा नहीं है। और इन्हीं की रंगमंच की दुनिया के लिए, क्योंकि मैं एक थोड़ा शायराना अंदाज वाला भी हूँ, मनोज भाई आपके लिए 4 लाइन आपकी आदेश से। जी। जिंदगी एक मुखौटा है और हम सब नाटक के पात्र। जिंदगी एक मुखौटा है और हम सब नाटक के पात्र। रोज पर्दे के गिरते ही हम बदल देते हैं अपने मुखौटे। नाटक जिंदगी है या जिंदगी एक नाटक, या फिर एक जिंदगी में 1000 जिंदगियां जीने की लालसा। तो मनोज भाई, ये आपकी जिंदा दिली और आपकी जीने की लालसा पे आप शुरू करिए अपनी बात। आपकी स्टेज की लाइफ से कैसे शुरू हुआ, क्यों आप स्टेज में गए, आपकी फैमिली भी थी उसमें थी, लेकिन थोड़ा सा वो लाइफ जो आज आपके सुनहरे पर्दे की सक्सेस को देख के शायद लोगों को नहीं पता है, थोड़ा सा वहां से शुरू करिए, फिर आपकी जर्नी पे बात करेंगे। ऐसा है कि कोई भी कलाकार जो है वो कभी मरना नहीं चाहता, और मरते दम तक वो अपनी कला के माध्यम से जीवित रहना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है। और हर व्यक्ति सफलता पाने के लिए, सो कॉल्ड सफलता पाने के लिए जीवन भर प्रयत्न करते रहता है। जी। लेकिन सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अपने हर समय को यदि हम खास बना ले तो सफलता आपके कदम चूमती है। क्या बात है, इसी बात पे तालियां। क्योंकि सफलता के पीछे भागना नहीं है, जी जी, हमको कर्म के पीछे भागना है। क्योंकि मेरा जो जन्म है वो ऐसे परिवार में हुआ है। माय ग्रैंडफादर वाज
elite Sanskrit scholar. My father was a Sanskrit scholar. He was teaching in some colleges, Wilson College में, फिर भारतीय विद्या भवन में. So मुझे बचपन से एक चीज मेरे डीएनए में है कि भाई तू कर्म किए जा, जो भगवत गीता भी यही कहती है जी. और 18 अध्याय में अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण भी यही कहते रहते हैं कि कर्म जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो तू कर्म किए जा, अपने आप फल आ जाएगा. फल को देख के कर्म करेगा, ऐसा उल्टा मत करो. आप कर्म करो, फोकस रखो, और वही मैंने किया. जी. मेरे परिवार में कोई नहीं था. माय ग्रैंडफादर वाज अ स्टोरी टेलर, ऐसा कहें, क्योंकि हमारा भारत जो है वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में स्टोरी टेलर पहला ऐसा देश है जो पूरे विश्व में पहला स्टोरी टेलर है. अगर कथाओं की शुरुआत अगर किसी देश में हुई है पूरे विश्व में, तो वो भारत में हुई है. और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो सारे पुराणों की कथाएं हैं, वो लोगों को समझाते थे. तो बचपन से वो कथाएं, स्टोरी टेलिंग जो है वो सुनता था. जी. सो माय फादर वाज अ वर्सटाइल. ही वाज वो नारदीय परंपरा के कीर्तनकार भी थे. तो जो अभिनय में 9 रस होते हैं, जी. जी. वो 9 रसों का पूरा जो वो स्टोरी टेलिंग या जो भी कीर्तन होता है, उस कीर्तन में वो सारे भावों का आविर्भाव होता है. उसके अंदर वो 9 रसों पर आरूढ़ होकर वो कीर्तनकार जो है वो अपनी जो बात है, जी. जो कोई भी एक स्लोगन गीता का हो या कहीं पर का हो, वो लोगों को प्रबोधन करने के लिए 2.5 घंटे, इट इज़ अ परफॉर्मेंस. मतलब उसको क्लासिकल म्यूजिक आना चाहिए, उसको स्टोरी टेलिंग आना चाहिए, उसे गाना आना चाहिए, उसे संगीत का नॉलेज होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है. और शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, ऑरेटरी अच्छी होनी चाहिए, शब्दों का विपुल भंडार और ज्ञान ही होना आवश्यक है. और ये सारे गुण जो है वो कलाकार में होने ही चाहिए, इनबॉर्न. लोगों को ऐसा लगता है कि कलाकार होना यानी चिकना चोपड़ा लगता है, अच्छा दिखता है, तो वो कलाकार हो गया. ऐसा नहीं है. मतलब कुछ लोग बोलते हैं, हम लोग जब किसी के यहाँ जाते हैं तो बोले ये अच्छा दिखता है, आप इसको अपने साथ ले जाओ. मैं बोला मैं लेके जाके क्या करूँ. करेक्ट. बट करेक्ट. कलाकार ने पढ़ना जरूरी है, उसको हर चीज की मालूमात होना बहुत जरूरी है. एटलीस्ट जो भी पुस्तक मिले, जो भी ज्ञान मिले, वो इस कंप्यूटर में फीड करना बहुत जरूरी है. और जीवन के अनुभव लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी है. है. इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंसेस, हाउ वुड यू पोर्ट्रे द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑन स्टेज और ऑन टेलीविजन और एनी अदर मीडियम फॉर दैट मैटर. वो नहीं होता. तो ये बैकग्राउंड मेरा इतना सशक्त था, जी. इसलिए मैंने सोचा मुझे चित्रकार होना था. हाँ, वो जे स्कूल से आप पूरा आपने पढ़ाई किया है. हाँ, मैं 2 साल था फाइन आर्ट्स में, बट उसके बाद में मैंने पब्लिकेशन डिजाइनिंग किया. जी. और आप भी सारे आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के बादशाह हो, सारे ये कॉन्क्लेव में आप आए हो, आप सबको बधाई. पहले तो मैं भी एडवर्टाइजमेंट का ही आदमी हूँ, और मैं कमर्शियल आर्टिस्ट, फाइन आर्टिस्ट बनना चाहता था. बाद में कमर्शियल आर्टिस्ट बना, बाद में पब्लिकेशन डिजाइनिंग किया. और उस समय उतने आउटडोर पब्लिसिटीज मतलब क्या था कि सिर्फ होर्डिंग पे पेंट करते थे. जी. ये फ्लैक्स वगैरह तो बहुत बाद में आई चीजें. टेक्नोलॉजी उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं इवॉल्व था. नहीं था. जी. तो मैं किस्सा बताता हूँ, फिर आपके प्रश्न के ऊपर जी. आता जी, हूँ. बिल्कुल. तो मैं स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ने गया, तो एक बार मेरे घर पे मेरे पिताजी के एक मित्र आए. मैं बोला क्या करता है बेटा आपका. बोले वो ये बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना है उसको. तो आर्ट्स में क्यों गया, साइंस में जाना चाहिए, अब वो डिसाइड करेगा.
मेरे लिए, क्योंकि उन दिनों 3 ही माध्यम थे, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। अभी भी वही है सर, हाँ। दुनिया ज्यादा बदली नहीं है। वो शिक्षा पद्धति बहुत ही भयंकर पद्धति की थी, अंग्रेज हमको देके गए थे, हमको कारकुनी बनाना चाहते थे। खैर, तो वो हिसाब से उसने बेचारे ने कहा कि क्या करता है, तो उन्होंने कहा कि ये तो पेंटिंग की पढ़ाई करने जाता है। तो बोले कितने साल का? 1 साल का कोर्स है। बोले नहीं 4 साल का 4 कोर्स साल है। का है। तो बोले, तो मैं बाहर आया तो मुझे पूछा कि 4 साल में 4 साल क्या पढ़ते हो उधर? तो बोले नहीं, पहले आप सब आउटडोर वाले हो, पब्लिसिटी वाले हो, एडवर्टाइजमेंट, इसलिए आपके लायक ये हिस्सा है और ये मेरे साथ घटा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा ये क्या करते हैं, पहले साल वो लोग बांबू बांधना सिखाते हैं होर्डिंग पर, फिर बांबू कैसे बांधने, दूसरे साल में बांबू पर चढ़कर पेंसिल से ड्राइंग करना सिखाते हैं वो होर्डिंग पे, तीसरे साल में उसमें कैसे कलर करना ये वगैरह सिखाते हैं। ऐसे 3 साल में, फिर चौथे साल में प्रैक्टिस करवाते हैं पूरी। ऐसे 4 साल का कोर्स होता है। तो फिर तो मनोज भाई उस लेकिन- जमाने से लोगों को ट्रोल करते आ रहे हैं। नहीं, लेकिन पॉइंट इज दैट लोगों को उस समय एडवर्टाइजमेंट की या आर्ट कला की उतना वो नहीं था कि पढ़ लिख के बाबू बने, नौकरी करे, सेफ हो, ऐसा था। और मैं एक ऐसे परिवार में था जहां मेरा ऐसा सोचना कि मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है, फिर वो करते करते कॉलेज में ही नाटक की थिएटर में आप- वो थिएटर जी, में जी। चस्का लग गया। वो एक तो ऐसा कोई ग्रुप था जिसके साथ आप काम करते थे? हाँ, हमारा एक ग्रुप था, जैंग ग्रुप करके, अच्छा। कॉलेज का ही ग्रुप था। फिर हम इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में भी भाग लेते थे, सब स्टेट कंपटीशन में, सारी कॉलेज इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी। फिर उसके बाद हर एक आदमी का लक्ष्य होता है कि मैं वहाँ जाऊँ, पर उसमें से मैं सक्सेसफुल रहूँगा या नहीं मुझे नहीं पता था, बिकॉज मेरे पिताजी को पता था, बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन संस्कृत प्लेज एंड ऑल दैट। सो उनको पता था, बिकॉज ही वॉज अ स्कॉलर, मतलब सारे संस्कृत नाटक मेरे घर में थे, साहित्य की रुचि थी, तो पढ़ता भी था। तो मेरी रुचि कब उसमें गई, साहित्य, कला और नाट्यशास्त्र, ये सब में आपका परिवार पहले से ही काफी इन्वॉल्व था। जी, तो जी। एक बैकग्राउंड था। इट ऑलवेज हेल्प्स टू हैव। जी, मेरे पिताजी थे। जी। तो फिर मैंने डिसीजन लिया 91 में, आई वॉज डूइंग जॉब, एक जगह में था आर्ट डायरेक्टर, परमानेंट जॉब था बॉम्बे में। बॉम्बे में। और उस समय 87 में मेरा कुछ 3,000 रुपया पगार था। 87 बहुत बहुत पगार था। अच्छा खासा पगार था 87 में 3,000। तो वो छोड़ दिया मैंने, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं प्ले ही करूँगा। और 87, 88 फिर मेरी माँ नाराज हो गई। फिर उसने कहा कि नहीं, आप एक मैं बात नहीं करूँगी तुमसे, या तो मुझे कोई भी लड़की नहीं देगा, शादी कैसे होगी। और नाटक में काम करना या सिनेमा में काम करना ये बहुत ही इनसिक्योर क्षेत्र है, तो माँ बाप को बड़ी चिंता होती है, और माँ को सबसे ज़्यादा होती है। तो उसने बात करना बंद कर दिया। इसलिए माँ की खुशी के लिए कि वो नाराज़ ना हो, इसलिए मैंने 3 साल और नौकरी शुरू रखी। और उसके बाद में 91 में मैंने रिज़ाइन किया, जब मैंने प्ले तब तक मैं प्ले ऐसे ही करते रहता था, और काफ़ी सारी जॉब्स भी बदलते रहता था, क्योंकि मुझे नाटकों की कंपटीशन में भी भाग लेना होता था, तो नौकरी छूट जाती थी। और उस समय सारा लेआउट वगैरह था, वो कंप्यूटर इतने आए नहीं थे, था ही नहीं जी। खाली फोटो टाइप सेटिंग होता था, बाकी कुछ नहीं होता था। तो डिजाइनिंग मैनुअल होता था जी। कंप्यूटर में नहीं होता था। तो वो सारा डिजाइनिंग, लेटरिंग, हेडिंग, इलस्ट्रेशन सब कुछ मैनुअल करते थे। पेज मेकिंग। जी। तो वो सब, तो क्या होता था कि नौकरी इजीली मिल जाती थी। एक प्ले के कंपटीशन के लिए रिहर्सल में गया, क्योंकि बहाने कितने थे रोज, कि आज मेरा चाचा बीमार हो गया, आज मेरी मौसी, ऐसे बहाने देखे देखे फिर रिश्तेदार खत्म हो गए। तो फिर वो खत्म हुआ। और फिर मैं क्या करता था, नौकरी छोड़ देता था, फिर दूसरी नौकरी मिलती थी। ऐसी 17 जॉब, 17 नौकरियां काउंट किया जाए मिलॉर्ड। तो वो सारे जॉब
खत्म करके फिर अल्टीमेटली मैंने डिसीजन ले लिया। मैंने जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहाँ रिज़ाइन दे दिया और उनको कहा कि सर मैं 1 साल ट्राई करूँगा, अगर नहीं किया तो अगर यहाँ वैकेंसी होगी तो मुझे वापस जॉब दे देना। और मेरा प्ले आया चाणक्य, जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जिसमें भक्ति परवे भी थी। वो गुजराती वहाँ प्ले की कंपटीशन थी। तो 90 में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, भक्ति परवे जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। जी। और बड़ी 50 एक प्ले थे उसमें। जी। शफी इनामदार का प्ले था, परेश भाई का प्ले, सभी के प्ले थे। तो उसमें वो प्ले के बाद मुझे एक आत्मविश्वास आया जी कि मैं ये कर सकता हूं, और मैं दृढ़ था कि मुझे यही करना है। और फिर मैंने कुछ आगे पीछे नहीं सोचा। आई वॉज जस्ट 23 और फिर मैंने कहा कि यही समय है कि आप जंप करो। और फिर तो आप एनएसडी नहीं गए? टिपिकली लोग बाग ये रूट लेते हैं कि आप प्ले कर रहे हैं, फिर एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाके या फिर एफटीआई में जाके। फिल्मों की एक्टिंग तब आपके दिमाग में नहीं था? नहीं, जाना तो था जी। बट क्या था कि मुझे जॉब करते करते, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, कोई मैं पैसे वाली फैमिली से था नहीं, तो मुझे ही मेरी पढ़ाई भी करनी है और मुझे पगभरे भी होना है, लेकिन मुझे होना है। जी जी। है ना। मेरे पिताजी ने बोला कि आपको करना है तो आप देखो, आप गिरोगे नहीं, मैं पीछे खड़ा हूं। करेक्ट। बट इतना आर्थिक कि मैंने इसीलिए पेंटिंग छोड़ा, क्योंकि रोज कैनवास का खर्चा, कलर्स का खर्चा, ये पिताजी भी सहन नहीं कर पा रहे थे। तो मैं जॉब भी करता था, इसलिए पब्लिकेशन डिजाइनिंग किया कि भैया ये कमर्शियल जी अगर आर्ट में करूं तो आगे चला जाऊं। तो फिर मैंने वो सब कुछ भुला के एक बार डिसाइड किया कि ये करना है। फिर 6 महीने मेरे साथ मेरे माँ ने बात नहीं की। उस कंपटीशन में प्राइज मिलने के बाद मुझे जो आत्मविश्वास आया, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने की तो गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि कमाना भी था, करना भी था, और वहां मुझे एडमिशन मिलेगा, फिर मैं 3 साल 4 साल के वहां बाद। रहूंगा। जी 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 जी। तो मैंने सोचा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो मुझे कोई पूछता है तो मैं हंसी मजाक में कहता हूँ यस आई एम फ्रॉम NSD। तो बोलते कौन सी बैच के? मैं बोला नहीं, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आई एम नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा, बिल्कुल सही बात करी मनोज भाई। अब थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और कई लोग हैं इस ग्रुप में, काफ़ी यंगस्टर्स हैं जिनको 80s और 90s का इंडिया और टेलीविज़न और दूरदर्शन नहीं पता है। लेकिन जो आपका शिफ्ट हुआ, आपका शिफ्ट टेलीविज़न में पहले हुआ, उसके बाद आप फिल्मों में आए और फिर वापस टेलीविज़न में गए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी, बिकॉज आपकी हेल्थ भी ख़राब हो गई थी। तो जो पहला सीरियल आपको मिला और उसके बाद आपके पास काम आना शुरू हुआ, तो वो जर्नी क्विकली ज़रा बताएं कैसे रहेगी? ऐसा है कि मैं हूँ गुजराती, पला हूँ महाराष्ट्र में, इसलिए मराठी भाषा पर भी अच्छा प्रभुत्व है, गुजराती भाषा पर प्रभुत्व है, हिंदी पर अच्छा प्रभुत्व है, अंग्रेजी जानता हूँ, और संस्कृत मेरा बेस है। जी अच्छा। जी जी। तो मैं कोई भी भाषा, मैंने एक मलयालम फिल्म में भी काम किया है जी। आई प्लेड मोहनलाल्स ग्रैंडफादर। अच्छा। उन्होंने ही मेरा नाम सजेस्ट किया था। इट वाज अ ग्रेट ऑनर मेरा, मतलब जी जी। कि उनके साथ काम करना, और वो भी उनके ग्रैंडफादर का, ओडियन नाम की फिल्म थी। अच्छा। सो आई स्पोक मलयालम मलयालम also. I don't know मलयालम, मुझे सिर्फ उन्नर अंडम उन्नर नाला मुझे भी उतना ही आता है। बट आई स्पोक बिकॉज अगर योर संस्कृत बेस इज गुड एंड यू कैन कैच द साउंड, तो वो एजाइलनेस आपकी होनी चाहिए। तो मैंने वो भाषाओं में भी काम किया। सॉरी हाँ, तो टेलीविजन की बात हो रही है। तो प्ले करते करते मैंने 20 प्ले किए, बट 91 में मुझे एक सीरियल मिली साइमल्टेनियसली चाणक्य और साइमल्टेनियसली बाजीराव पेशवा। मैंने सबसे पहले 90 में बाजीराव पेशवा का रोल किया मराठी सीरियल, मराठी में। हाँ, ये फिल्म अभी आई। अभी है। जी जी। मैंने उस समय बाजीराव का रोल किया था, एंड एग्जैक्ट एज थी मेरी। अच्छा। और मस्तानी और जी उस समय- लीड रोल था आपका उसमें? हाँ, लीड रोल था। उसके बाद मैंने चाणक्य सीरियल की, जो पुरानी चाणक्य सीरियल थी,
द्विवेदी साहब का। हाँ, फ्रेंड का रोल किया, बट साइमल्टेनियसली मेरा प्ले वगैरह चलता था। बट मैंने एक चीज ठान ली थी कि मुझे सारे माध्यमों में, मतलब तीनों भाषाओं के माध्यमों में, जी। चाहे वो नाटक हो, टेलीविजन हो फिल्म या हो। फिल्म, जी, तीनों माध्यमों में, तीनों भाषाओं में काम करना है। गुजराती में भी करना है, मराठी में भी करना है, और हिंदी में भी करना है। तो मैंने वैसे ही प्लान किया था कि एक डेली सोप में मराठी में कर रहा हूँ, एक डेली सोप में हिंदी में कर रहा हूँ। उन दिनों वो पॉसिबल होता था, आज वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, लेकिन उन दिनों एडजस्ट भी होता था, चलता भी था, करते थे। तो ये जो काम हो उसके बाद माँ थोड़ी संतुष्ट हुई कि बेटा दिख रहा है, नहीं। टेलीविजन में लोग आ रहे हैं, थोड़ा वो लोग बाग चाणक्य सीरियल सबके पास, देखो तो सर, हुआ। मैं एक चीज मानता हूँ, जी, आप ईश्वर तो मंदिर में है, ईश्वर को कभी किसी ने देखा है नहीं देखा है मुझे नहीं पता, अनुभूति हुई है, जी, लेकिन मैं मानता हूं और हम सब यही मानते होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं कि माँ और बाप यही हमारे एक्चुअल इस धरती के ईश्वर है। बिल्कुल बात, ये क्या बात ही बोली ईश्वर है। तो वो जब अपने बारे में देखो, कोई आपका दुख होगा, आप गिरोगे, असफलता सो कॉल्ड मिलेगी, तो दोस्त भी होंगे ना, वो आपके सुख में काम आएंगे, लेकिन दुख में जो आपके साथ रहता है वो सिर्फ और सिर्फ माँ और बाप होते हैं, और कोई नहीं होता सर। हाँ, एक्सेप्शनल दोस्त हो सकता है कोई, जी, बट माँ बाप जो होते हैं ना, तो माँ मेरी जो थी ना, वो मेरे आगे के भविष्य के लिए चिंतित थी, इसलिए। लेकिन जब उसे पता चला, मुझे जब अवार्ड मिला, और वो अवार्ड था मेरा 15,000 रुपये का, आई एम टॉकिंग 90 में, जी, वो 15,000 का अवार्ड मैंने मेरे भगवान के पास रखा, मेरी माँ के चरणों में रखा, और मैंने कहा कि ये मैंने प्रूव किया है कि जिसके लिए तुम चिंतित थी, तुम चिंता मत करो, क्योंकि उसको चिंता थी कि उस समय थिएटर में जाना यानी बिगड़ जाना, लोग व्यसनी हो जाते हैं, दारू पीते हैं, व्यसन में लुप्त हो जाते हैं, ऐसे असंख्य किस्से उसने सुने थे। ओके, और देखो सर, माँ मेरी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, पर वो है ना, वो छोटी छोटी चीजों में जो बातें करती है ना, वो पीएचडी प्राप्त करने वाली बातें करती है। वो पढ़ाई और जो ज्ञान और जो विजडम हमारे पेरेंट्स का और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का और हमारे पुरखों का रहा है, जी, मुझे लगता है कि उसका कोई बराबरी नहीं है। हम में से काफ़ी लोग हैं इस जगह पे भी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु पेरेंट्स माइट नॉट बी बाय conventionally qualified, would not have gone large big degrees, but the wisdom they bring is something completely uncomparable. तो उसने मुझे फिर कहा, ठीक है, देन माय ग्रैंडफादर वाज दैट टाइम अलाइव, फिर वो भी खुश हुए, तो बोले बेटा इधर आओ, तो बोले तुमने डिसाइड किया है कि तुम एक्टर ही बनोगे, गंधर्व बनोगे, तो अच्छा, गंधर्व बोला। तो बोले तुम ब्राह्मण हो, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को ज्ञान देना, ये छोड़ के तुम गंधर्व बनोगे, नाच गाना करोगे। बट बेटा एक बात याद रखना जी, ये जो कलर है ना यहाँ का जी, वो अंदर मत जाने देना। तो आई थिंक आई ओबेड दैट, और मेरी माँ भी खुश हुई उसके बाद, और उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा जी। फिर फिल्में भी आती रहीं, प्ले भी करता रहा, फिर मराठी थिएटर में ज़्यादा मैं स्थिर नहीं हो, मैंने मतलब डिसीजन लिया कि या तो मुझे एक ही थिएटर में मैं काम कर सकता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड। जी, जी, तो फिर मैंने गुजराती थिएटर ही चुना, जी, कंपटीशन के प्ले किया, और एक ही प्ले किया मैंने मराठी, जी, जी, जी। और उसके बाद वो But आपका चल रहा है, I think your theater is still continuing. Yeah. Moving forward, his filmography, as all of you know, is amazing. The kind of roles he has done over the years. Initially, he got success more in the comedy roles, but over the years, I think he has transformed himself into a amazing character actor. And today is a very, very unique and special day. Today is 26th of July 2024, and today his film called UP Files is getting released in the theater, where he is the solo lead. Ladies and gentlemen, huge round of applause for Joshi Bhai. Right? सर मेरे 33 इयर्स की करियर में
मैंने मराठी फिल्मों में लीड किया है, गुजराती फिल्मों में लीड किया है, लेकिन हिंदी फिल्म में चरित्र अभिनय काफ़ी किया है, वर्सेटैलिटी दिखाई है मेरी, प्रूव की है। लेकिन ये पहली बार मैं लीड रोल कर रहा हूँ। आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आप जरूर देखें। सिनेमा में जाके Thank you. देखिएगा, गो टू द थिएटर्स एंड वॉच इट प्लीज। मैं एक बात जरूर कहूँगा, यहाँ पे हमारे योगेश लखानी बैठे, मुंबई के ब्राइट वाले, उन्होंने मुझे इनिशियली भी बहुत हेल्प की है। मैं ये डंके की चोट पे यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरे नाटक के 80 होर्डिंग उन्होंने पूरे मुंबई में लगाए। क्या बात है, योगेश भाई के लिए तालियां। इज अ ट्रू थिएटर लवर दैट आई विल से, सो उनके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू। एंड ही इज अ वेरी हम्बल मैन। Lovely. We are running out of time, so I've got 2 or 3 more questions, Manoj bhai, for you very quickly. मैं आपके काफ़ी पब्लिक लाइफ को भी, पब्लिक लाइफ मतलब बियॉन्ड एक्टिंग लाइफ को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता रहा हूँ। आपका एक काम जो आप सिंटा के एज ए प्रेसिडेंट आप बन गए आप, और जिसके एक ज़माने में ओमपुरी साहब भी प्रेसिडेंट होते थे, बाकी बड़े लोग भी होते थे, अब आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके फेलो आर्टिस्ट के साथ लेके। आप अब क्या करना चाहते हैं उस फील्ड में, पहला एक क्वेश्चन। और दूसरा ये क्वेश्चन कि अब बियॉन्ड फिल्म्स, बियॉन्ड एक्टिंग, बियॉन्ड ये आपका कर्म है, ये आप कर रहे हैं, बट इन लार्जर, एक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लार्जर पब्लिक लाइफ बियॉन्ड फिल्म्स, अब आप किस डायरेक्शन में अपने आप को और आपकी लेगेसी को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? कंबाइंड क्वेश्चन है, आराम से दीजिएगा, हमारे पास में 1-1.25 मिनट और है, आराम से बोलिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सफलता का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप यदि थोड़े बहुत भी सफल होते हो तो आपका दायित्व है कि समाज के प्रति आपका, या आप जिस कम्युनिटी में हो, जिस फैकल्टी में हो या जहां हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये मैं सोचता हूं। और मैं एक आश्रम के साथ भी जुड़ा हुआ हूं, एक हरिद्वार में आश्रम है, वहाँ वो कुष्ठ रोगियों के बच्चों की सेवा करते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। उनके लिए पूरे देश में चाणक्य नाटक करता हूँ। दूसरी एक बात, मेरी जो, अब पहले मैं प्रेसिडेंट था, अभी मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, अभी पूनम धिल्लोन जी हैं, जी जी जी, इलेक्शन में वो आई, लेकिन अभी भी मैं इसी मेंबर हूँ। और एक्टरों के लिए, जो छोटे छोटे एक्टर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारी एनजीओ से उनकी मेडिकल एड के लिए, उनके लिए क्या कर सकते हैं जी, वो भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग काफ़ी सारा फंड भी जमा करना चाहते हैं, जब आपकी आवश्यकता होगी जी, ओएसी की भी, तब भी आपको कहेंगे, और आप लोगों में से हमको भी सहायता करनी लोगों ने। इसलिए आपका, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आप सबको अभिनंदन देता हूँ। और आप अपने अपने बिजनेस में, क्योंकि बिना ढोल बजाए आजकल कुछ नहीं होता, और आजकल तो इतने सारे माध्यम आ चुके हैं, डिजिटल, आजकल तो एआई आया है, सब कुछ आया है, लेकिन कितना भी एआई आ जाए सर, लेकिन अंदर का जो दिल है ना, वो दिल एआई नहीं बना सकता। स्पंदन जो है हमारा, हमारी भावनाएं हैं, वो एआई कभी नहीं बना सकता सर। ऊपर से नीचे गिरोगे तो ही नहीं बना सकता। ये मैं आपको कहता हूँ। बट आपको बहुत बहुत अभिनंदन फिर से एक बार, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। विजय खत्म करते हैं, जाते जाते मनोज भाई के लिए 2 शब्द और। मैं एक बात जी और कहना चाहूँगा, आप सबके माध्यम से, आप सब लोग आउटडोर पब्लिसिटी करते हैं, सब कमाना चाहते हैं। अब हम लोगों ने अभी अभी ओथ ली, और उसके विषय, पर्यावरण के विषय में भी मैं कुछ छोटा छोटा काम करते रहता हूँ। तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप सबके जितने भी होर्डिंग्स होंगे, उस होर्डिंग पर इतना प्रचार तो अवश्य करना, चाहे सरकारी विज्ञापन हो नहीं हो, ये आपका विज्ञापन है। क्योंकि यदि आप अपनी माँ को प्यार करते हैं, सब लोग अपनी माँ को प्यार करते हैं कि नहीं करते? अरे हाँ तो बोलो। हाँ हाँ। तो ये धरती हमारी माँ है सर। आज से 25 साल के बाद ये ऐसा ही होता रहा तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ना,
हाँ, ये जिसके लिए हम कमा रहे हैं ना, वो आने वाली जो पीढ़ी है ना, हमको कोस के रहेगी कि आप लोगों ने हमको पैसा दिया, वो पैसा खाने को काम नहीं आएगा। लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे और पर्यावरण यदि जिंदा नहीं रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जिंदा नहीं रहेगी। जो हम सोच रहे हैं ना कि हमारी 2 पीढ़ियां आराम से बैठ के खाए, हमारे बच्चे आराम से पढ़े लिखे अच्छे रहें, वो अच्छे नहीं रहेंगे। तो हमको, आप सब लोग आउटडोर पब्लिसिटी करते हो, तो स्वेच्छा से मैं ओएसी को भी बोलता हूं और आप सबको बोलता हूं कि आप स्वेच्छा से, भले मैं बोलता हूं 1 वीक चलाए, 1 वीक चलाए, बट एटलीस्ट उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। और हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेके, अपनी माँ को यदि चाहता है, अपनी मातृभूमि को चाहता है, अपने राज्य को चाहता है, तो वो 1 पेड़ मिनिमम लगाए। ऐसा आप एडवर्टाइज करिए, ऐसी मेरी विनती है। करेंगे? सब प्रण लेते हैं। एवरीबॉडी इज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। जस्ट टू एंड, मनोज भाई आपसे मिलके बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से। आपके लिए 2 शब्द। मनोज भाई की जिंदगी से वी टेकन अप दिस लीप ऑफ फेथ कि सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज का टिकट नहीं लगता। सपनों को उड़ने के लिए मनोज भाई हवाई जहाज का टिकट नहीं लगता, बस पलकों को उम्मीदों के पंख चाहिए। आपने हमारी जिंदगी को उम्मीदों के पंख दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मनोज जोशी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। This was fantastic. Thank you so much, sir, for those words of wisdom. And we're going to request you now to please do us a special honor. We've got a bowl that's being brought up onto the stage, and we want you to draw out the name of the lucky draw winner. So this morning, whoever joined us before 10:30, your names are in this lucky draw box. And someone's going to walk away with a brand new MacBook Air. And who's that lucky person? A brand new MacBook Air. संतोष गोविंद सावंत। Santosh Govind Sawant, where are you? You've got a MacBook Air waiting for you on stage. You've got to rush up on the stage. This has to be exciting for you. Let's have the music pick it up right now. Santosh Govind Sawant, join us on stage 5. Everyone up, sir. Congratulations. Air. One more time. Congratulations, ladies and gentlemen. So that darling, please put your hands together. Tomorrow, another prize to be won if you join us sometime before 10:30. Congratulations, Santosh. And we're going to request Mr. Yogesh Lakhani to kindly join us on stage. Mr. Yogesh Lakhani from Bright Outdoor Media, join us on stage. We just heard about the support you gave to the world of theatre. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Yogesh Lakhani. Loud round of applause. Can we have the memento? Mr. Yogesh Lakhani, please present the memento. We request Dr. Dwarika to join in the photo as well. Let's have one group photograph, please. Ladies and gentlemen, that was really a fabulous session. We'd like to thank the inspiring Mr. Manoj Joshi. Thank you very much, sir.